Students, in our online classes, today we will study science of class 3rd. We are going to study lesson number 1, which is living and non-living things. Okay? Now, I am going to read the lines. Listen very carefully. There is a variety of things around us. Some of them are natural things while others are man-made things. Okay? हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ नेचुरल थिंग्स होती हैं जिनको गॉड क्रिएट करते हैं, तो कुछ मैन मेड थिंग्स होती हैं जिनको मैन क्रिएट करते हैं. Here are the pictures. We can classify them into natural things and man made things like sun. Sun is a natural thing. Cloud is a natural thing. Cow is a natural thing. Car is a man made thing. Bird is a natural thing. Flower is a natural thing. Boy is a natural thing. Tree is a natural thing. Okay, like this. Now, natural things are either living or non-living. Natural things या तो living होती हैं और या तो non-living होती हैं. Thus, we can divide all things into two main groups: living things और non-living things. Okay. Now, हम पढ़ेंगे living things को और non-living things को. Now, first, what is living things? Living things are alive. Human beings, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि जिंदा होते हैं. दे कैन ब्रीथ. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक, वी कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स एज लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर एबल टू डू द फॉलोइंग. ठीक, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स. ठीक है, लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं. Living things can move from one place to another on their own. Animals and human beings move from one place to another. This type of movement is called locomotion. Some animals move on land, air and water. Okay? Living things एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं, वो खुद से मूव करते हैं. एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन. ओके, लोकोमोशन. नाउ, animals move because of various reasons. First is to look for food and water. ठीक, animals move क्यों करते हैं? For the food and water. उनको खाने और पीने की जब ज़रूरत होती है तब वो मूव करते हैं. To escape from its enemies or other dangers. जब enemies को वो देखते हैं and when they found themselves in dangers, they try to escape from that place. Now, to look for shelter. Okay. For the shelter also they used to move from one place to another place. Now, plants move too. Okay, plants are also living things. Plants move but do not change their position. Plants move तो करते हैं लेकिन अपनी position change नहीं करते हैं. They are able to move their parts by themselves. वो सिर्फ अपने पार्ट्स का ग्रोथ करते हैं, इसलिए उनका पार्ट्स मूव करता है. ठीक, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बस उनके पार्ट्स चेंज होते हैं, मूव करते हैं. The movements in plants are, however, slow, so they are not seen within a short period of time. जो उनका मूवमेंट्स होता है प्लांट्स के पार्ट्स का, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम नहीं देख सकते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसको ग्रोथ होने में. We can only see their movements after a period of time. For example, a plant grows, it move upwards, downwards and sideways. Okay, a plant used to grow upward, downwards and sideways. Now, here is the picture, the growth of a plant. We will study this. As more leaves grow, the plant becomes broader sideways. जैसे जैसे लीव ग्रोथ होती है उसमें प्लांट्स कैसे होते हैं? ब्रॉडर होते हैं. ठीक. The second point is the stem grows upward so that the plant becomes taller and is able to get more sunlight. जैसे स्टेम ग्रोथ होती है तो प्लांट टॉलर बनते जाते हैं. देख रहे हैं आप ये हाइट. ओके. Third point is the root grows downward into the soil to absorb water and hold the plant firmly to the ground. Root downward पे grow होती है by absorbing water and nutrients. Movement in plants takes place because of various reasons. To grow and become bigger and taller, to respond to changes around them. Example, the mimosa plant closes its leaf when they are touched. Okay, mimosa plant is called in Hindi chui mui. They used to close their leaves when anybody tries to touch it. Okay, to obtain food, as in the case of Venus flytrap. Okay. Now, non-living things do not move by themselves. जैसे कि लिविंग थिंग्स ग्रोथ होती है, वो मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स को जब तक हम लोग मूव नहीं कराते हैं या हिट नहीं करते हैं, वो तब तक मूव नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल मूव्स
व्हेन यू हिट इट इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। ओके, एक बॉल है, एक बुक है, एक पेंसिल है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, उसको जब तक हम मूव नहीं करेंगे, जब तक हम हिट नहीं करेंगे, वो तब तक खुद से मूव नहीं करेगी। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो, दे चेंजेस इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस एज टाइम पासिस। लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं, उनके साइज़ में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है, और टाइम के साथ साथ अपीयरेंस में भी चेंज होता जाता है। दे बिकम बिगर, टॉलर, फैटर और ब्रॉडर। दे बिकम बिगर, टॉलर, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं। नाउ हेयर आर द पिक्चर्स। अ फ्रॉग एग बिकम्स एन एडल्ट एग। ओके, एडल्ट फ्रॉग एग है, फिर ये ग्रोथ हुआ, फिर ये फ्रॉग बन गया। सेकेंड पिक्चर इज़ अ बेबी बिकम्स एन एडल्ट। बेबी है, थोड़ा सा और ग्रोथ हुआ, आफ्टर देन इट बिकम्स अ बॉय, आफ्टर देन एन एडल्ट। द लास्ट पिक्चर इज़ अ सीड बिकम्स एन एडल्ट प्लांट। ये सीड है, फिर ग्रोथ हुई और ग्रोथ हुई, आफ्टर देन इट बिकम्स प्लांट। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। कैन योर स्मॉल टॉय और डॉल ग्रो इनटू अ बिग टॉय और डॉल? नो, नो वन ग्रोज एट ऑल। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती है। आप लोग अपने घर पे देख सकते हो, जो टॉयज़ होता है या डॉल होता है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसको आप जैसे घर पे लाते हो वैसे ही सेम रहता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स। नाउ स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।